copy and climate classifying system. Up to here we did in the last part. Now we will start with the copy and climate classifying system. What it is, that it uses mean, monthly and annual values of temperature and precipitation to classify climates. According to the Köppen classification, the Earth can be divided into several major climatic zones and bands. So कौन कौन से major climatic zones हमारे यहाँ के हैं? वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ओशियनिक क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सब आर्कटिक क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका। ये सारे क्लासिफिकेशन हुए। नॉर्मली जो हमारे यहाँ के सीजन्स है वो 4 हैं, लेकिन ये क्लाइमेटिक कंडीशन बताया गया है कि कॉपियन ने किस तरह से क्लाइमेट को क्लासीफाई किया हुआ है, और हम जानेंगे कैसे कौन से क्लाइमेट्स दिखते हैं। सो अब देखेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये कैसा दिखता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब जो सूखा है ज़मीनी एरिया, वो रेगिस्तान, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ओशियनिक क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सब आर्टिक क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। Polar climates are those in which the mean temperature of the warmest month is below 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म भी जो सीज़न होता है, जो मंथ होता है, वहाँ का भी टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। Climate of Antarctica we have. So up to here we have the Köppen climatic classification system. Now we'll know about the Indian monsoon, that we have already read that what is Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. सो अरब जो हमारी कंट्री में आए थे, तो वो मर्सी ऑफ विंड्स की मर्सी पे आए थे। मीन्स उनकी नाव जो थी वो विंड के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और इस तरह से वो इंडिया के कोस्टल एरिया में पहुंचे थे। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoons. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. The Arab who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system as monsoons. So जो अरब इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, वो वाटर बॉडीज़ के थ्रू आए थे, और उसके बाद वो विंड की मर्जी पर जिस तरफ विंड मूव कर रही थी उस तरफ उनकी नाव वो मूव करती जा रही थी, शिप, और इस तरह से वो मूव करते करते इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में पहुँचे, और इस तरह से इंडिया के क्लाइमेट का नाम मानसून रखा गया, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। We can see the atmospheric conditions over the Indian subcontinent in the month of January, how the wind moves, and we have different scales like surface wind, we have arrow, black arrow, and for subtropical westerly jet streams we have double arrows, and you can see the movement of the arrows as they have been shown here as the winds. So how they are moving in the north within the month of January, and same in the month of June they are moving the tropical jet stream, they are moving at the south side of the Indian continent, and the rest of the winds you can see it is moving from Indian Ocean to the coastal areas of the India. So like this we have the seasonal reversal of the winds, and which is named given by the Arabs, that is monsoon. Now we have the facts of mechanisms of the monsoons. वो चीज़ें जिसके बेस पर इंडिया का सीज़न जो मानसून है वो डिपेंड करता है। That in India the monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. The following facts are the mechanisms of the monsoons. क्या क्या facts हैं हमारे मानसून के? पहला है the differential heating and cooling of land and water. लैंड और वाटर का डिफरेंट तरीके से कूल होना, और प्रेशर विंड्स जो हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। इस तरह से जो विंड है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विंड जो है वो ब्लो करती हैं पूरे साल हमारे इंडिया में। Second is the shift of the position of intertropical convergence zones. In summer over the Ganga plain, this is the equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon seasons. So ये intertropical convergence zones है, इसकी वजह से भी, इसके डिफरेंस से भी क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, और जो विंड है वो मूव करती है। Next is another difference of intertropical convergence zone is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north to south with the apparent movement of the sun. So जिस तरह से सन मूव करता है, इसकी मूवमेंट जो है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की ये मूव करती है, ये जब पैरेलल है इक्वेटर के, और इस तरह से जब सन की इंटेंसिटी ज़्यादा और कम होती है इक्वेटोरियल रीजन्स पे, सो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट होता है। Another facts are the presence of high pressure area east of Madagascar, nearly at 20 degrees south over the Indian Ocean.
The intensity of this high pressure area affects the Indian monsoon. अब इंडियन ओशियन पे जब ज़्यादा ही सन की इंटेंसिटी पड़ती है, सनलाइट वो ज़्यादा वार्म होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के प्रेशर है वो लो होता है, और एयर जो है, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ के क्लाउड फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड आते हैं और रेनफॉल होती है। तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। तिब्बतन प्लेटू आप देखेंगे नॉर्थ साइड में, ये थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है, और जो सी लेवल से काफ़ी ऊपर है। जब सी लेवल से ऊपर होगा तो जो सनलाइट पड़ेगी वो इसके ऊपर पहले पड़ेगी और बाद में आसपास के एरिया पे पड़ेगी, जिससे इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ प्रेशर कम होता है, और इस वजह से जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस तरह से डिफरेंस इन हीटिंग और कूलिंग होता है। Next is the movement of westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. समर के टाइम में क्या है कि सन जो है वो हीट करता है ज़्यादा लैंड को एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडीज़, इसलिए ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म होती हैं समर टाइम में एज़ कम्पेयर टू विंटर, और ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है और वाटर बॉडीज़ कम होती हैं, इस तरह से ज़मीन पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वाटर बॉडीज़ पे कम। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, इस वजह से विंड जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है जो इफेक्ट करता है हमारे मानसून्स पर। अनदर टॉपिक इज़ वी हैव सदर्न ऑस्किलेशन। ये क्या है? द चेंजेस इन द प्रेजेंस प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशियंस also affect the monsoons. When the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. So प्रेशर का डिफरेंस का मतलब ये होगा टेम्परेचर यहाँ पे कहीं ज़्यादा कहीं कम की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा और कम होता है। But sometimes there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in the comparison to the eastern Indian Ocean. So इस तरह से जब वाटर बॉडीज़ पे डिफरेंस होता है तो प्रेशर ज़्यादा और कम होता है, इसकी वजह से विंड जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑस्किलेशन। अब चूँकि ये साउथ में हो रहा है, इंडिया के साउथ में ही इंडियन ओशियन और सारे ओशियंस हैं, इस वजह से जब साउथ में इंडिया के रिवर्सल होता है विंड का, कभी हाई प्रेशर इंडियन ओशन में, कभी हाई प्रेशर पैसिफिक ओशन में, इस तरह से जब मूवमेंट होता है तो विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस जो कि साउथ में इसलिए नाम दे दिया इसका सदर्न ऑस्किलेशंस। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती इन पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन इज प्रेडिक्टेड द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। इस तरह से मानसून देखा जाता है कि अब इंडिया में मानसून कब आएगा। आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि अब मानसून इंडिया में 15 जून के बाद या कोई डेट होती है उसके बाद आएगा। तो वो कैसे पता चलता है? वो इस प्रोसेस, इस मैकेनिज़्म के थ्रू पता चलता है कि हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में कब तक बारिश होगी, कितनी होगी, ये सारी चीज़ें पता करते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून्स। अगर जो टेवरेज होता है वो माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो पता चलता है कि मानसून हमारे यहाँ लेट आएगा। अगर पॉजिटिव में आता है तो वो जल्दी आएगा। तो इस तरह से एक स्टडी की जाती है। अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज़ द एल नीनो। एक फीचर और जुड़ा हुआ है सदर्न ऑस्किलेशन से, वो है एल नीनो। इट इज़ अ वार्म ओशियन करेंट दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years। सो एक कोस्ट है, कोस्टल एरिया है पेरुवियर, जहाँ पर डिफरेंस होती है हीट का, तो 2 से 5 साल के बीच में ये डिफरेंस टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस होता है। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। द phenomenon is referred to as the El Nino and so that is El Nino southern oscillation। so इसलिए इसका नाम दिया गया El Nino। So you can see the southern oscillation here, how the difference in the pressure creates the movement of the winds and then it creates the oscillation in the southern part of the India. What is the effect of El Nino? El Nino is a name given to the periodic development of a warm ocean current garam along the coast of the Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word meaning the child and refers to the baby Christ as this current starts flowing during the Christmas। so इसलिए इसका नाम दे दिया गया एल नीनो। 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया एल नीनो। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। सो टेम्परेचर जब डिफरेंस होगा, जब वाटर बॉडीज़ पर अर्थ की सन की इंटेंसिटी कम होगी तो वो टेम्परेचर कम होगा, और जब वहाँ टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा वहाँ पर हाई होगा, जिस वजह से विंड वहाँ मूव ज़्यादा नहीं करती इस टाइम में। तो इस तरह से एल नीनो का इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडियन ओशन पे और वाटर बॉडीज़ पर भी। यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। With the movement of the winds it brings the cloud and which sees the beginning of the monsoons। कैसे बिगिनिंग होता है मानसून का हमारे इंडिया में? द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन
100 to 120 days फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर. सो ये हमारे यहाँ का मानसून का एक डेट है, अर्ली जून टू मिड सितंबर इस तरह से रेनफॉल होता है. ड्यूरिंग इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज. रेनफॉल तो होती है लेकिन नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. कई दिन तक बारिश होती है. दिस इज़ नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून. बस मतलब फट जाना. और मानसून जो है वो रिवर्सल ऑफ द विंड है एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स. प्री मानसून शावर मतलब प्री मानसून शावर्स मतलब वक्त से पहले, जब आपसे जून से पहले जब बारिश होती है उसको बोलते हैं प्री मानसून शावर्स. द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. So subsequently proceeds into two, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. So हमारे इंडिया में साउथ साइड में आप देखेंगे दो वाटर बॉडीज है, लेफ्ट और राइट, ईस्ट और वेस्ट, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. तो इस ब्रांच से भी जब क्लाउड्स फॉर्म होकर आते हैं तो हमारे यहाँ रेनफॉल होती है. सो वी हैव द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई. पहले अरेबियन से आप देखेंगे हमारे वेस्ट में मुंबई है और उसके वेस्ट में देखेंगे आप तो आपको वाटर बॉडी में अरेबियन सी मिलेगा. सो वहाँ से बना हुआ क्लाउड पहले कहाँ पहुँचता है, मुंबई पहुँचता है. अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th of June, दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. सो अरेबियन सी का जो मानसून है वो पहले कहाँ पहुँचता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो बे ऑफ बंगाल का वो पहुँचता है असम में. The lofty mountains causes the monsoon's winds to deflect towards the west over the Ganga plains. तो इस तरह से जब नॉर्थ में आप देखेंगे पहाड़ जो है वेस्टर्न साइड में वो विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो किस तरफ जाने लगता है, गंगा प्लेन्स. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoons merge over the northwestern part of Ganga plains. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal by the end of June. That is tentative date is 29th June. By the July first week, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and rest of the country. तो इस तरह से मंथ वाइज, डे वाइज इसका एक ड्यूरेशन बना हुआ है मानसून का कि किस तरह से वो किस किस स्टेट्स में कब कब पहुँचती है. So you can see the wind movement here, how the winds moves with the clouds and it causes rainfall in different states in different times. एंड ऑफ द मानसून्स. कब मानसून्स एंड होते हैं और कैसे एंड होते हैं. इधर तो हो गया कि कैसे मानसून क्रिएट हुआ. विथड्रॉल और द रिट्रीट, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है बारिश के गुजरने का. द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर. अभी हम सीज़न आ गया है जिसमें आप मानसून जाते हुए देखेंगे. बाई मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला. सो नॉर्थ में हम लोग का यूपी है और आप देखेंगे धीरे धीरे मानसून अब खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे ठंड आ रही है. Then it quickly withdraws from the southern half of the peninsula. By early December, the monsoon has totally withdrawn from the country. So दिसंबर तक हमारे यहाँ मानसून पूरा चला जाता है और फिर आता है नया सीजन जो होता है विंटर. The island received the very first monsoon showers from the south to north between the last week of April and the first week of May. Then it withdraws from north to south during the first week of December to the first week of January. By this time, the other parts of the country is already influencing the winter monsoon. So इस तरह से winter monsoon बाकी countries parts में आ जाता है और जो coastal regions होता है यहाँ से निकलते निकलते दिसंबर हो जाता है मानसून्स को. सो आप देखेंगे किस तरह से विंड है जो मूव कर रही है सदर्न पेनिनसुला. देखेंगे विंड जो है वो डेट वाइज दिया हुआ है, किस डेट किस विंड के थ्रू जो क्लाउड्स है वो क्रिएट हो रहा है और रेनफॉल क्रिएट हो रही है. Next we will do or we will read about the seasons in the next video. Till then all of you